ये ज़्यादा कर देते थे, मैंने उससे इसको तो लेट इसके Good morning and namaskar to each one of you. We welcome you in this AGM of 2023. We'll go by the agenda, but first of all, as you know that in recent past, a number of flats have been sold. So we have got a number of new members. We sent notice to all the new members to pay 1,000 rupees as per the law and become the member of AOA. We collected the data from all the members who have been a member for the last 5 years, and as of now we have got 114 members of AOA caskets. The list of all members is there outside in the attendance list. So we will welcome all the new members also. The first item of the agenda is the roll call, which has already been done. We ask any member who has not signed attendance, please sign it now. The second is proof of notice. We sent, as per the law, the notice of AGM and election notification to all the members of AOA by speed post, and we put in MyGate. Also, informally we put in WhatsApp also, which is not required as per the law. The third item of the agenda is reading minutes of the previous meetings. All the data of previous meetings are stored in MyGate. The best part is that our team has done a good job. As much data we had from last 5 years, we have tried to put in MyGate. So any one of you can see that audited balance sheet, election results, and also notification about AGM of last 4-5 years. Coming to the fourth item of the agenda, that is report sharing with all the AOA members. As all of you know that AOA is formed in 2017, and in a society like this where occupancy was very small and 2 towers were absolutely incomplete, formation of AOA in 2017 was an uphill task. So at this forum, I would like to compliment all the members who made all hard work, visited Meerut, and worked sincerely to form the AOA in 2017. So all of us would like to thank 2017 team who did stupendous tasks and got it completed in 2017. One good news is that this AOA formation was registered in 2017 for a life of 5 years. It got expired in 2022. And then we applied to the Deputy Registrar in Meerut, and we submitted all the required documents because most of the things are online right nowadays. So we did online, and I am very pleased to share that in 2022, AOA casket has been re-registered for another 5 years. So this has happened just last year. The moment it got re-registered, we flashed it in MyGate, and informally also in MyGate, in WhatsApp also. Now this year, since 2022 March,
we thought of, because this committee, you can see now we are just 4 of us as of now sitting here. Me as the secretary of the last AOA, my friend Mayank, who is a treasurer right now of the AOA committee. Auntie Indrajit Auntie has been the vice president, and she has been the member of AOA since AOA came into inception. And being a single lady in our age, she has been extremely committed for supporting AOA and maintaining a good community living in the society by all her efforts. And I can recall that since I became the member 4.5 years ago, in 2018, in every meeting on Sunday, I have seen Indrajit Auntie to be in clubhouse every time. So I would like to give a big round of applause. Big job. And so when March came, we got right now 4 members, and we have got 1 member who didn't turn up because of his family reasons. Ravi Agarwal, our 1 is your 2, and our president, B.S. Park, who resigned some time back, but he was reluctant to continue for last 3-4 months because of his personal reasons. Even today he is traveling. He is not here. He told me that he will be in Mumbai. He will try, but I think he would not come today. Mr. Bhatt has also been with us for last 5 years as a member of Siddharth Pandey has been not getting any official duty in AOA, but somehow he took the charge to maintain the meetings, registers almost every Sunday. And Mayank has been meticulous in ensuring that the accounts are well taken care of, it is audited on time, and secondly, income tax returns can be filed on time. And every data what you want to know from Mayank is already in MyGate. You can always go and see. When you click MyGate, you get those data there. So as I said, in 2022, in the month of March, we did a Zoom call and invited any member who wants to become volunteer. Because a 6-member team with only 3-4 members present on every Sunday, it was thought that let us have some more members as volunteers. And then on that Zoom call, very few of our owners eventually became the members of volunteers group. Then we made another drive after a month, and we continued this drive. But there was one residents meeting in this lawn, and we requested the members present on that day to become volunteers. And then I am very pleased to announce that few members of AOA agreed to become the volunteer members of existing team. Our strength became better because from 4, 5, 6 it became around 8, 9. So on this occasion, I would like to compliment and thanks the volunteer members, our own who has been the president and very sincere contributor in AOA, Mr. Sanjay Singh, who became the volunteer member, Mr. Rajesh Kalra became the volunteer member, Mrs. Anita Kalra became the volunteer member, Mr. Joshi became the volunteer member, Mrs. Dipti became the volunteer member. I think these and Mrs. Nazim Roji became the volunteer members. Today, our Jubair became the volunteer members. Ruhi also. I'm sorry, Ruhi also. I'm sorry. Ruhi also became the volunteer. So once we got all these volunteer members, then our strength became better on every Sunday meeting. And in a small society, with our own personal interest,
of maintaining quality of life, I must tell you that every Sunday we had a very good time. In the sense, all volunteers members were nice enough to bring coffee, tea, snacks in this room, and we had a very collegial meetings Sunday after Sunday. I'm extremely grateful to them that this environment is very important to run a society. Any hostile person makes the society very bad in terms of its living and community living. We want people to be nice to each other and people to contribute positively in the society, because everybody is a member of society and everybody is an owner. So they have got a personal interest to see that society runs nicely and our asset value goes up year after year. Few more data to share that. Then in volunteers group, we made an events committee and we deliberately decided to go for women empowerment. So therefore, because it was by and large all male committee since it was formed, except Auntie and sometimes Mrs. Joshi. So we thought that why not as many women can participate in AOA, and that will make our AOA more smarter, more better, and they can focus on, because a lot of things what women understand in the society and the time they can spend, men can't do it. So therefore we requested and we had an event committee, and I'm very proud and happy, and I want to compliment the efforts of our events committee to make the new year beautifully done, organized, and then a beautiful party potluck happened in the society, and very recently we had a great Holi function in the society. So this is what we have been doing. Our term was ending today because this AOA was formed last year on 27th of March. So we thought of the elections must be held. Before that, we have completed 1 year. I was looking at the data and I found that out of 5 years, there were 2 years Corona years. So every time we had last time in March and 1 or 2 times we met in December also and we had elections. Just to share a few data with you, as of now, total possessions offered by Unitech in society is 208 and total possession taken is 193, and total number of residents who are living in the society as of now is 108, and this time the tenants outnumber the owners in the society. Yeah, so I'll share a few more data later on, but just to share you few important things what our team have been able to accomplish. This is work in progress. 2017 onwards, the AOA members, AOA board I will say, they have been doing a lot of hard work negotiating with Unitech. Negotiating with previous Unitech was tough. Negotiating with current Unitech is impossible. Because today Unitech is owned by Government of India, monitored by Supreme Court of India, and we have got the CEOs and other people who are retired IAS officers, and now the entire team sits in Gurgaon. So for all AOA members visiting Gurgaon, negotiating with them, talking to them, it takes hell of an effort. You send an email, they don't reply, you don't care for you. The reason being is that their only agenda is to work for the incomplete towers in various places in India. The maintenance is their least agenda item in their scheme of things. So my experience is that we have been struggling to deal with them for last 2 years, I will say, since Feb 2020 they came into existence. But before that, we had the liberty to go in Sector 93 in Noida and thump their desk and talk to Nadeem and talk to Naveen and various people with so much of anger. But today, such things will not happen because they are all IAS officers. You can't do anything. They will not listen to you. But still, a lot of good things have happened. I want to share with you that in continuum of 2017, actions which started by then President Chandraksh
and then later on all the presidents and all the secretaries, treasurers till today. So what we have done as a member that there was an RO machine. I will just list out quickly these things now. RO machine was installed for water for our staff and all, which AMC has been signed. DG service is on a regular basis done. Water pump maintenance has been done. Clubhouse utilities app was cleaned. It was well done. There was a requirement for exhaust fan in the machine room. We installed the exhaust fans in the machine rooms. All bathrooms in all towers have been repaired, which are on the ground floor, which was in a very savvy, very bad state. If you would have seen, probably we don't know, we don't go, we have never seen. But if you go today, repair has been done, and our staff members are using these toilets, even the guests use these toilets. Then we appointed one mason and one labor. If you are going around the society, you can see that existing assets are being maintained with that mason and the labor. They are doing round the clock work in various parts of the society. And our objective is that by the end of 2023, most of the repair work of civil type will be completed. I'm also very happy to announce that just few days back, we had a request to CEO, Mr. Yadav of Unitech, and he approved a painter and a helper, because after the civil work, we need a painter to paint and distemper various parts of the society. So you'll find that probably by tomorrow onwards or day after tomorrow, the painting work of the society will start. Okay, this has been done. The main gate was in a very savvy state. There was a part of the main gate which was broken. तो उसको हम लोगों ने civil work करा के, it was not an easy task. We have done. The painting work also there. So main gate is fully repaired. A structural audit की डिमांड बहुत दिन से हो रही थी यहाँ पे. हमारे टावर्स अर्थक्वेक आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, उसमें स्ट्रक्चर हमारा खराब हो सकता है. We had a series of emails exchanged with the CEO, Mr. Yadav, and then he sent his own team under the leadership of project team in Unitech. A structural audit has been done, and they have not shared with us, but I had discussions with them, and they said that structurally there is hardly any fault which need to be worried about at this point in time. So that has been shared with us. You might have noticed that lift is running smoothly, okay, and our maintenance staff, Mr. Mudrika, is asked to maintain the lift on a regular basis, check the lifts on a regular basis. Otis team comes and they also do preventive maintenance. And lift was in a very bad shape, in a very savvy shape once upon a time. And on that, I would like to extremely grateful to one person in this room, that is Sanjay Singh, who made a great effort to bring Otis to this. We got all tired, let me tell you. So thanks to him. And finally, Otis, happened to us. And today, you can see that all lifts are running smoothly. If there is some problem, it's only because lifts are very old and it's lubricated. But some requirements are there. If all owners will agree, those things can be taken care of later on. Then, we're planning to start swimming pool. There has been a debate inside the AOA board कि स्विमिंग पूल को कैम से लेना है, कि स्विमिंग पूल को अलग से फाइनेंस करना है. ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताइएगा क्या करना है. Swimming pool is an existing part of the asset. Gym is an existing part of the asset. So my view as a secretary and a member of the AOA board is that all these assets must be maintained through CAM, and no extra charges should be taken from any owner to maintain these things. Any new things can be thought of by charging all of you, but existing assets must be maintained by CAM only, nothing else. फॉगिंग का काम हम स्टार्ट करा रहे हैं. फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी, बट उसको शायद उठाने में, उसको ले जाने में दिक्कत होती है. बट आई आस्क्ड स्टेट मैनेजर, ही सेड दैट दिस वीक, नेक्स्ट वीक, फ्रॉम स्टार्टिंग मंडे टू संडे, फॉगिंग वर्क विल बी डन ट्वाइस इन द सोसाइटी टू टेक केयर ऑफ मॉस्किटोज एंड ऑल. फायर सेफ्टी की ड्रिलिंग्स होते रहती है. टावर 6 के लिफ्ट के पिट में एक काम कराना है, वाटर प्रूफिंग का. हमने लिख के दिया है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है. क्लब हाउस जहाँ बैठे हैं, इसकी हालत बहुत ख़राब थी दीवारों की, कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके एक यहाँ के वेंडर से उसको फ्री काम करवाया. इसकी पूरी मेंटेनेंस, पेंटिंग वगैरह हमने फ्री कराई विदाउट स्पेंडिंग मैंने सिंगल पे नहीं दिस.
राइट, अभी प्रॉब्लम्स है हमारे पास सीपेज की, जिसके लिए यू ऑल हैव टू एग्री ऑन हाउ दिस सीपेज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. Tower 2, 3 and 4 we had discussions that what is going on, and there is no confirmed news, but when we talk to Unitech they said that probably this year in June the work of Tower 2, 3 may start. So this I am saying with May is a bracket, you never know how this will happen and when this will happen. आपने देखा होगा टावर 1 के सामने पाम ट्रीज की हालत बहुत ख़राब है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गए हैं. उस पर वी हैव टू टेक ए कॉल कि क्या पाम ट्रीज को वहाँ से शिफ्ट करना है, उसको रखना है, तो वो हमेशा ऐसे हो जाएगा, ग्रो करेगा, उसके रूट्स उसको ब्रेक करेंगी. सो दैट ऑल ऑफ अस हैव टू टेक ए कॉल. आई कांट डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की क्लीनिंग बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं. टावर टॉप फ्लोर गेट को भी लॉक करने की बात है. आप जब ऊपर जाएंगे सारे फ्लोर्स पे, सारे टावर्स पे, तो उस पर सिविल वर्क काफ़ी हुआ है, बट देयर आर स्टिल सम वर्क नीड टू बी डन. लाइटिंग आप देख रहे होंगे, कई जगहों पे लाइट्स अभी ठीक हैं, और कोशिश किया गया है कि यहाँ पर भी जो हमारा क्लब हाउस के पास एरियाज़ है, स्विमिंग पूल के पास जो एरिया है या पीछे के एरिया है, सब जगह एडिक्वेट लाइट हो, इतनी लाइट की है. आपने देखा हो कि बेसमेंट में पार्किंग को लेकर प्रॉब्लम होती है. सो नाउ वी हैव परचेज्ड 100 सीमेंट ग्रेटिंग सिस्टम, उसकी ग्रेटिंग की गई है और वो इफेक्टिवली अभी सही है. ऑल ऑफ अस एग्री वी कैन प्रोक्योर 200, 300, 400 सीमेंट ब्लॉक्स एंड वो ग्रेटिंग कंप्लीट हो सकती है. तो पार्किंग पीपल कैन डू नाइसली एनीवेयर. देयर इज़ नो नीड फॉर एज ऑफ नाउ टू थिंक ऑफ कि पार्किंग असाइन कर दो. अभी 10 लोग रहते हैं, पार्किंग 400 लोग यहाँ पे है, सो देयर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट इट. ग्रेटिंग अगर हो जाएगी प्रॉपरली तो पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो 100 हमने किया है और आगे हम लोग करने के मूड में है. कैमरा अभी हमारे पास 19 फंक्शनल कैमराज हैं. जो लिफ्ट लॉबी आप बेसमेंट में होते हैं वहाँ पे एक लगी हैं, आपकी ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में लगी हैं, डीजी रूम में लगी हैं, क्लब हाउस के बाहर लगी हैं, मेन गेट पे लगी हैं, पंप रूम पे लगी हैं, और सारी की मॉनिटरिंग मोबाइल से भी हो रही है, और सारे का एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे स्टेट मैनेजमेंट ऑफिस में भी है, वहाँ से भी काम हो रहा है. Horticulture, people might have different opinions, but I find lot of things green. Okay, keeping in mind our resources, keeping in mind manpower, this can be ramped up, this can be improved. But people have different opinions. किसी को पीला फूल पसंद है, किसी को लाल फूल पसंद है. मैं पीला लगाता हूँ तो बोलते हैं क्या पांडे जी पीला लग गया चारों तरफ, लाल लगाओ. तो कहते हैं नहीं लाल क्यों लगा रहे हो यार, पीला लगाओ. It depends what people want with this. So, but as of now you can see society is full of greenery and full of flowers all around. Okay. बेसमेंट में एक डिमांड थी वाटर कनेक्शन की, क्योंकि कार जो वॉश करता है वो कहता है इस तरह हमें पानी लाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है और वो गंदे पानी से आपकी कार को साफ करता था. तो अभी टावर 8 के पास एक वाटर का उसको कनेक्शन दिया गया है और वहाँ से वाटर लेकर के उसको करता है. आपने देखा होगा कि बेसमेंट में भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि बेसमेंट की सफाई और धुलाई लगभग महीने में एक बार हो जाए. अभी लास्ट टाइम भी हमने किया है. और एक आपसे न्यूज़ शेयर करता हूँ कि बेसमेंट में इतना कूड़ा पड़ा था, वी हैड टू डिस्कस एंड टेक ए बिग कॉल टू रिमूव ऑल द कूड़ा फ्रॉम बेसमेंट. 16 ट्रॉली कूड़ा बेसमेंट से निकला है, जो मात्र 10,000 रुपये खर्च करके सारी कूड़ा वहाँ से हटाया गया है. और टावर 4 में भी कुछ कमरे थे जिसमें गार्बेज डंप किया गया था पास्ट में, उसको भी 2,000 रुपया देकर के पूरी तरह से क्लीन करा दिया गया. एयरटेल हमारे यहाँ से उसके कुछ बिजली के बिल बकाया थे जो उन्होंने अभी पे कर दिए. स्पीड ब्रेकर्स एक आध जगह खराब हो गए हैं, उसको बनाना है. पार्क प्लस चल रहा है, माई गेट इफेक्टिवली चल रहा है. सारे लोग माई गेट पर अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च करते हैं, वो सॉल्व होता है. कई बार वो डिस्करेक्ट होता है, कई बार वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं होता है. वी हैव टू रीडू इट. दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. ओके, इलेक्ट्रिकल आइटम्स कई जगह पे चेंज किए गए हैं, आपने देखा होगा. सिविल वर्क ऑनगोइंग है. जो हमारा वेस्ट है कूड़ा विच इज़ ड्राई एंड वेट, इसकी यहाँ से क्लीनिंग हो रही है. उसको परमानेंट सोल्यूशन अभी तक निकल के नहीं आया है. दिस इज ऑन द यूनिटेक. वी हैव रिटन सो मेनी मेल्स, so many conversations have happened, but there is no permanent solution neither here nor in Habitat in many places of Unitech. Okay, incinerator machine install होना है, वो हमारे पास खरीद करके आ चुका है. इतने छोटे छोटे काम
सोसाइटी में हो रहे हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग a lot of things have been done, but I can claim with lot of satisfaction कि आज की डेट में सोसाइटी में जो मेन काम है, हॉर्टिकल्चर, हाउस कीपिंग, लिफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पीजी, स्मूथ। नो ओनर कैन से दैट आई एम फेसिंग एनी प्रॉब्लम अगर होती है तो इमीडिएटली सॉल्व करें। लॉट ऑफ वर्क्स नीड टू बी डन, डेवलपमेंट वर्क होना है, ब्यूटिफिकेशन वर्क होना है, कई काम होना है, बट ये सब बेसिक काम सोसाइटी में आज बड़े स्मूथ हैं। एक ज़माना था जब मैं बैग लेके आता था और टावर 8 पे अपने 8वें फ्लोर पे पैदल चढ़ के जाता था और सिक्योरिटी गार्ड को 100 रुपया देके अपने सामान पर चढ़ाता था। लिफ्ट की इतनी हालत खराब, वो सब अब केसेस नहीं हो रहे पिछले 2 साल से। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड दिस क्राउड हैज कम नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ मेनी पीपल इन द AOA बोर्ड व्हिच हैव डन इट सो नाइसली इन पास्ट 2 years। मैं आपको एक सबसे दुखद समाचार देना चाहता हूँ जिसके चलते सोसाइटी हमेशा प्रॉब्लम में रहती है। आपको पता है कि मेंटेनेंस हमारे हाथ में नहीं है, नथिंग इज इन आवर हैंड। वी आर एन एडवाइजरी बॉडी, वी आर ए बॉडी विच राइट्स मेल्स टू यूनिट। सब कुछ उनके हाथ में है, खर्च कितना करना है, किसको क्या नोटिस देना है, हम सिर्फ एडवाइस करते हैं और हम फोर्स करते हैं भाई ये काम को बेटर सोसाइटी वो करते हैं, कई काम नहीं करते। ड्यूज की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी सीरियस है। 2020 कोविड के टाइम पे सितंबर में हमने यहाँ पे कैंप लगवाया था और उस कैंप में लगने के बाद कई लोग ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, दुबई से, सऊदी अरेबिया से, इंडिया से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वर्चुअली किया, फिजिकली किया। बहुत उसमें हार्डवर्क हुआ उसमें एक टीम के। उसमें हमारे प्रेसिडेंट राजेश कालरा थे। आपको मैं एक बहुत गुड न्यूज़ देता हूँ कि राजेश कालरा जी की लीडरशिप में और एफर्ट से 56 लाख रुपए कैंप कलेक्ट किए जो यूनिटेक नहीं कर सकता था। पर्सनल कॉल किए गए सारे लोगों के पूरे दुनिया में हर जगह कि प्लीज़ पे योर बिल्स, प्लीज़ पे योर बिल्स। 56 लाख कलेक्ट हुए थे। उस वक्त 9 महीने के वेंडर्स के ड्यूज पड़े हुए थे और ये आज की डेट में इतने कम हो गए हैं कि अब कंफर्ट लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। बट जो बैड न्यूज़ ये है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हुआ उस वक्त, उसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक और दौर चला। कई कंप्लेंट्स आई कि नहीं हमें नो ड्यूज नहीं मिला, हमें यूनिटेक ने बेवकूफ़ बनाया। संजय जी, कालरा जी और हमारी टीम ने कंटिन्यूसली मेल लिखा संजय यादव को कि आप सर प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ डू समथिंग ऑन दिस। और उसके बाद माई गेट से सबको न्यू ड्यूज मिलना शुरू हुआ। और आई कैन टेल यू दैट लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स देयर दिस डिस्प्यूट हैव बीन रिजॉल्व एंड दे गॉट न्यू ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिटेक नाइसली। देयर आर फ्यू ओनर्स, कुछ ओनर्स होंगे जिनके डिस्प्यूट होंगे, नो डाउट अबाउट, बट उसको रिजॉल्व करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब आप डेटा देखिए। यहाँ पे जो ओनर्स रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ओनर्स 58 लाख रुपए कैंप के बनाए। So people who pay money camp on time, they must think, are they service providers for people who are not paying money? 58 लाख ओनर जो यहाँ रह रहे हैं, फॉरगेट जो यहाँ नहीं है, उनका डेटा मैं आपको देता हूँ। और जो ओनर ने यहाँ अपने घरों को रेंट पे दिया है, जिनके टेनेंट यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों पे यहाँ पे बैकडोर एंट्री की, ये रिक्वेस्ट करके कि सर हम पार्ट पेमेंट करते हैं, हमें आपकी रेंट घुसा। यूनिटेक ने एग्री किया, AOA ने फैसिलिटेट किया कि चलो भाई पैसा आ रहा है, थोड़ा मोड़ा दे। उनकी बकाया है 34 लाख। मतलब हमारे 108 ओनर्स और टेनेंट जो लोग यहाँ रहते हैं, जो सारी फैसिलिटी यूज करते हैं, जो कॉमन एरिया को यूज करते हैं, जो माइग्रेट को यूज करते हैं, जो पार्क प्लस को यूज करते हैं, उनकी बकाया है 1 करोड़। आप इमेजिन कीजिएगा कि 1 करोड़ आ जाता है तो इसको फाइट करके सोसाइटी में कितने काम हो सकते हैं। सोसाइटी इज इन स्टिल, वेंडर्स का जो डिटेल मैं आपको दूंगा उतना अभी पेनफुल नहीं है जितना पेनफुल पहले हुआ करता था। 10-10 महीने के बकाया हुआ, अब बहुत कंट्रोल में आ गया है सब कुछ करने के बाद। लेकिन ये बकाया है उन लोगों के जो यहाँ पे सारी सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज की बात करता हूँ, जो यहाँ पे ओनर्स रह रहे हैं, अच्छा मैं पहले कैंप की बात कर रहा हूँ, जो ओनर्स यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, जिनके फ्लैट्स रेंट पे नहीं है, उन पर हमारे क्या में पानी का बिल देना है। पानी का पैसा तो उन्होंने हमसे ले लिया है और आगे अथॉरिटी जो पानी सप्लाई कर रहा है उसको नहीं दिया, वही 2 करोड़ का बिल है।
तो कल क्या होगा वी डोंट नो, बट दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर्स राइट नाउ। 3 करोड़ का ड्यूज है सोसाइटी के ओनर्स पर। 2 करोड़ तो छोड़िए उन लोगों का जिनका कोई इंटरेस्ट यहाँ नहीं, बट 1 करोड़ तो उन लोगों का जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो आई वांट टू नो फ्रॉम एजीएम लेटर ऑन, आप क्या चाहते हैं, उनसे क्या करना चाहिए। बिजली का बिल जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल है, क्योंकि बिजली अगर आप जलाते हैं तो आपको पेमेंट टाइम पे करना है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, फरवरी महीने का, मार्च का बिल आज चला जाएगा, फरवरी महीने का जो बिल है उसका बताया है 63,000 ओनर्स जो यहाँ रह रहे हैं, वो 63,000 रुपये पैसे लेंगे। मतलब जो लोग पे कर रहे हैं ये मोरल हैजार्ड है उनके लिए कि पे वो किसके लिए कर रहे हैं। और जो लोग टेनेंट हैं उनके लिए एओए ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। यूनिटेक वो भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। आप उनको मेल लिखिए, नॉट इंटरेस्टेड। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो डॉक्यूमेंट पे साइन भी नहीं करना चाहते। हम लोगों ने नोटिस दिया टेनेंट को पर्टिकुलर, क्या बिजली बिल पे क्यों नहीं करते हो, और 3 लाख का बिजली बिल कलेक्ट हुआ 7 दिन में। उस कंडीशन में जब उनसे ये कहा गया कि भाई आपका बिजली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एओए एक एडवाइजरी बॉडी है, एओए एक ऐसी बॉडी है जहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि सब घर घर जा करके टेनेंट को धमकाएं, उनसे बिजली कनेक्शन करें। यूनिटेक करना ही नहीं चाहता, उनको बिजली फ्री करके बैठा हुआ है, आप जलाते रहो, बाद में देना। यहाँ पे कुछ ऐसे ओनर थे जिनकी बिजली की बकाया 60,000 रुपए थी हमारे टावर में। उनको संजय जी ने फोन करके रिक्वेस्ट करके उनसे सुना। मतलब प्रॉब्लम क्या है, या तो ये भी कि चलो बाद में दे देंगे, बट देन आवर डेफिसिट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इट प्रेशराइजेस लॉट ऑफ थिंग्स। स्विमिंग पूल चलाना है, 6 लाख रुपए खर्चा है। अब मीटिंग में क्या बात हो रही है कि फंडिंग करना है कि कैंप से चलाना है। 3 करोड़ का कैंप बकाया, 1 करोड़ का कैंप बकाया जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और आपके सवाल पूछने क्या करना है उसके लिए। अगर लोग पैसा देंगे तो आप 10 स्विमिंग पूल चला सकते हैं आप आसानी से। इतने यहाँ बच्चे रहते हैं, गर्मी का दिन आ रहा है, स्विमिंग पूल कोरोना के टाइम पे बंद था, चलाना चाहिए हम लोग भाई कैंप। लेकिन टेनेंट के हार्ड कलेक्शन के बाद फरवरी का बिजली का बिल बकाया मात्र 9,000 रुपए, और जो वेकेंट फ्लैट्स हैं उनके बिजली की बिल बकाया 3 लाख रुपए। ये सारे हमारे ड्यूज के हालात हैं। मैंने ये सब बातें आप लोग से शेयर की बेस्ड ऑन सम डेटा व्हिच वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम यूनिटेक। हम उनसे एक MIS लेते हैं, अभी MIS भी मिलना मुश्किल है। There is a non-cooperation movement going on from Unitech to societies. They are behaving like kings and queens. मैंने एक मेल लिखा था, मैं आपको मेल शेयर करूंगा। मैंने उनको लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रिटिश राज में रह रहा हूँ। मैं ब्रिटेन के लॉर्ड को, वाइसरॉय को लिख रहा हूँ कि सर कृपा करें, हम पे दया करें हुजूर, हमारी सोसाइटी में काम कर रहा है, कैम हमसे हमें देना है, लेकिन वो कॉपरेट नहीं करते। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, एओए एक विवेक अग्रवाल जी ने एक माइग्रेट पे प्रश्न डाला था, हम किस तरह के एओए चाहते हैं। वी वांट एन इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग एओए। मैं देख रहा था 15 दिन में 9 लोगों ने सिर्फ वोट किया। ये बड़ा एक रीजनेबल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। हमें इफेक्टिव एओए चाहिए। अगर एओए इफेक्टिव नहीं रहेगी तब थिंग्स विल मल्टीप्लाई फ्यूचर। क्यों मल्टीप्लाई होगा? टावर 2 दिन का काम शुरू होगा। यहाँ पे कई ऐसे काम है जो प्रोजेक्ट को करना है। अगर 2-3 के काम के टाइम पे प्रोजेक्ट वो काम नहीं करेगा, फिर वो काम हमारे कैंप से होगा बाद में चलता। सो प्रॉब्लम इज दैट वी नीड एन इफेक्टिव एओए एंड वी नीड यूनिटी। वी नीड पीपल टू कम एंड डेमोन्स्ट्रेट एट प्लेस। गुड़गांव जाने के लिए 2 लोग मिलते हैं, 1 लोग मिलते हैं। नोएडा जाने के लिए कोई नहीं मिलता। आई कैन अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस आर बिजी, एवरीबॉडी इज बिजी, बट हमारी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी। बट एक गुड न्यूज है, यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टी ब्रोकर मिश्रा जी बैठे हुए हैं, दैट ओनर भी है, बड़ा मेहनत से काम किया इन्होंने। 30 फ्लैट बिकवाया है सोसाइटी का, और अब हमारे टाइप फ्लैट जो कि लोगों ने 70-80 लाख में खरीदे थे, तो दाम घट के 55 लाख रुपए हो गया था। पर हम रह रहे थे, दुख तो होता था, लेकिन अब इन्होंने उसको 65 लाख करा दिया। इस सही है? क्यों? प्रॉब्लम क्या पता है? फ्लैट ही नहीं है। 97-98 फ्लैट रजिस्टर्ड है, फ्लैट नहीं है। मेरे दोस्त फ्लैट लेना चाहते हैं, कहते फ्लैट है। और टावर 1 एंड टावर 6 के फ्लैट्स का दाम है 75 लाख रुपए, जो जमाने में घट के 60 लाख रुपए हो गए। वैसे बढ़ते बढ़ते आप उम्मीद कीजिए कि 3 करोड़ का हो जाए।
उम्मीद है, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे एओए के लोग स्ट्रांग होंगे और हमारे जो तीसरा जो देखते हैं ब्रोकिंग का काम, ये भी थोड़ा सा पुश करेंगे, स्कैर्सिटी क्रिएट करेंगे, फ्लैट्स यहाँ पे सोसाइटी ब्यूटीफाई होगी। आई थिंक दिस कैन हैपन। This is the agenda. Now, coming to the next item of the agenda. Next item ये है, हमारा जब टर्म पूरा हुआ तो हमने 9 फरवरी को इलेक्शंस कराने का सोचा, एजीएम बुला के। उस पे विवेक जी ने एक लिखा उस पे माइगेट पे कि रूल के तहत इलेक्शन होना चाहिए रूल के तहत। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। I checked the past and I found that 2021 elections happened in the month of March. I checked further past. Before that, elections happened in December, and then I went to Habitat. They had an election in January. तो हमारा टर्म खत्म हो गया था। अगर मैं इलेक्शन नहीं करता, आप में से कोई सवाल पूछता कि पावर हंग्री हो, कंटिन्यू कर रहे हो, इलेक्शंस कराओ। दूसरा, हमारे 6 मेंबर हैं, 3 मेंबर ने वॉलंटरीली हमें बोला कि भाई हम नहीं काम करते, प्लीज ब्रिंग मोर मेंबर्स, प्लीज गो फॉर इलेक्शंस। तो हमने रिक्वेस्ट करके इलेक्शंस के लिए बात की और सबसे पहले हमने त्रिलोक जी को और आनंद प्रकाश जी को रिक्वेस्ट किया कि सर आप लोग इलेक्शन ऑफिसर बन के काम करें। इन्होंने बड़ा एक वैलिड सवाल पूछा कि डॉक्टर पांडे ये बताइए कि हमारे पास वोटर लिस्ट कहाँ है, हमारे पास है नहीं वोटर लिस्ट, वी हैव नो आइडिया हु आर द मेंबर्स ऑफ इट। यहाँ वहाँ से पूरा जुगाड़ किया गया, मनीष के पास कुछ डेटा था, चंद्रार जी को ईमेल लिखा गया प्लीज प्रोवाइड सम डेटा, और फाइनली हम लोगों ने बहुत यहाँ वहाँ करने के बाद हमने एक वोटर लिस्ट बनाई, पर हमने क्या पाया, उसमें डिले हुआ। 9 फरवरी को हमने एक माइग्रेट पे डाला था कि हम एजीएम करेंगे इलेक्शन, और जब 8 मार्च को होली के नेक्स्ट डे 8 मार्च के बाद हमने सर से पूछा कि सर क्या करना है, करें, वोटर लिस्ट तो भी तैयारी नहीं हुई है। हम कह सर ये वर्क इन प्रोग्रेस है, वोटर लिस्ट तो अपडेट होती रहेगी, कई फ्लैट सोल्ड हो रहे हैं, तो नए ओनर आ रहे हैं, 1000 रुपये देके वोटर बंद करेंगे, तो लेट अस गो फॉर इट। आई फाउंड दैट इट इज गेटिंग डिलेड, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कैन वी डू एन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। फाइनली आनंद प्रकाश जी और त्रिलोक जी ने, आई एम ग्रेटफुल टू देम, दे सेड प्लीज गो अहेड विद एन ऑल्टरनेटिव। एंड तब हम पहुंचे श्री विनोद जोशी के पास, टावर 602 जो आज तक 16 में फ्लोर में है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर व्हाई डोंट यू बिकम इलेक्शन ऑफिसर, हमारे सोसाइटी में इलेक्शन ऑफिसर भी बनने को तैयार, इतना बड़ा पोजीशन है बताइए, नोबडी इंटरेस्टेड। बट हर टाइम पे आनंद प्रकाश जी, त्रिलोक जी और विनोद जोशी जी ही इलेक्शन ऑफिसर बनते। फाइनली ही एग्रीड कि मैं बनने को तैयार हूँ, लेकिन पांडे जी रूल सिलेक्शंस होंगे, and then he prepared all the documents, he shared in MyGate, WhatsApp, elections processing हुआ। 18 मार्च को लास्ट डेट थी फाइल करने की, विड्रॉवल की लास्ट डेट थी। उसके बाद विनोद जोशी जी ने एक लिस्ट पब्लिश की है, जो आप सबको पता है कि मात्र 10 लोग के नॉमिनेशंस वैलिड पाएंगे, और इसलिए एओए की तरफ से आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू विनोद जी दैट ही एग्रीड फॉर बिकमिंग इलेक्शन ऑफिसर्स। और मैं बिफोर आवर अदर मेंबर्स टॉकिंग अबाउट इट धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसके पहले मैं विनोद जी को बुलाऊँ यहाँ पे अनाउंसमेंट करने के लिए कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या हुए जो हम लोगों ने प्रपोज किया था। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आंटी जी कुछ अगर बोलना चाहती हैं तो आप कृपा करके संबोधित करें। आपने सब कुछ तो कह दिया, कुछ और बोलना चाहते हैं? हाँ, आपको बोलूँगा, पहले को बोलूँगा, आप बोलिए ना, सीनियरिटी लिस्ट में आप हैं। थैंकफुल टू एवरीबॉडी दैट यू आर कमिंग हियर, और अच्छी देख के सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्पेशली आई एम थैंकफुल फॉर लेडीज। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें 3-4 हमने फंक्शन किए हैं तो इनकी बदौलत में, और आगे भी अगर हम आप मौका देते हैं तो लेडीज आपसे ज़्यादा काम कर सकते सो प्लीज रिमेंबर नाउ वी हैव द मोर स्ट्रेंथ देन यू, सो बी केयरफुल
बाकी जो हो रहा है हम सबके लिए काम करने के लिए तैयार हैं और जैसे भी हम करते हैं मेरे पास तो हाउसकीपिंग है आई थिंक एवरीबॉडी नोज ही इज डूइंग वेरी वेल। बस एक गलत हुआ था कि उसने वो चोरी कर लिया था क्योंकि हैंडल लग रहा है लेकिन 40 हैंडल लग रहे हैं। उस बेचारे ने चोरी इसलिए कर रहा था कि उसकी बीवी मर गई, उसकी बच्ची थी, वो डिप्रेस था, तो उसने ये कोशिश की कि मैं शराब पी के अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, तो उसमें वो मारा गया। ठीक है, पर यह है कि गरीब आदमी की यही कहानी होती है आखिर में, पर उसको यहाँ से निकाल दिया गया है और बाकी लोग बहुत ठीक से काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई शिकायत हो किसी के बारे में, सो आई विल यू थैंक यू। फाइंड आउट। जैसा हम लोगों ने माइग्रेट को लिखा भी था कि हैंडल्स रिप्लेस हो रहे हैं। जो वेंडर है they have agreed to put all the handles in all 42 flats which had been stolen by that guy. उसको पुलिस में बुला के लोगों ने दिया था, we had discussions उसके वेंडर के साथ भी किया था। तो before man speaking few things about our accounts, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीटिंग्स में हम लोगों ने समोसा गुलाब जामुन का अरेंज किया है और संजय जी की बदौलत हम लोगों ने नवरात्र के भी आइटम अरेंज किए हैं। रोहित जी के गवर्नमेंट का मंत्र तो चल ही रहा। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि उस लड़के को निकालने की बजाय मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने ऑफिस में रख लो, गरीब आदमी उन्होंने रख लिया जाएगा, तो उन्होंने रख लिया। तो उससे पैसे निकाल लेंगे जो उसने देने थे, पर इट्स ओके के उसको निकाला, उसका काम निकाला। तो जो लोग नवरात्र करते हैं, जिनको फूड चाहिए, नवरात्र का भी फूड है वो डिलीवर होगा आपके लिए, और जो लोग समोसा गुलाब जामुन खाने के शौकीन है वो डिलीवर होगा चाय के साथ, पानी के साथ। अब आप कुछ आप बोलना चाहेंगे? आपने बोल ही दिया। अकाउंट्स हमारे दो हैं, वी ऑल नो। एक है जिसमें आप कैम और बिजली का बिल पे करते हैं, दैट इज विथ यूनिटेक, वी कांट टच इट, दे यूज दैट अकाउंट टू पे ऑफ आवर वेंडर्स। उसका बैलेंस अभी 10 लाख के आसपास है, जिसमें से 4 लाख अभी जाएगा बिजली बिल में। तो हमारा बैलेंस इसके आसपास रहता है अभी थैंकफुली। ड्यू विथ वेंडर्स इज अराउंड 3 to 4 months. We are like our aim is to keep it at 3 month maximum, but कभी 3 to 4 months अभी हो जा रहा है। But cash flow is much better. So I was a joint treasurer last year as well. So compared to last year, इस साल cash flow better है. So that's helpful. Then the next thing is about the AOA account. उसमें काफी confusion है. एक CAM account है और एक AOA account है। AOA account हमारा backstop account है, because कभी लेट हो जाता है यूनिटेक से पैसे देने में, और हमारे पास कुछ इमरजेंसी रहती है, तो दिस AOA account is very helpful. This AOA account was created by the first AOA in the leadership of Mr. Chandrash, and we got data from him of who all have contributed. 3 तरह की contribution हुई है इस account में। एक तो 1,000 सबको देना है, उसके बिना you can't become AGM member. Then there was 5,000 rupees contribution by some flat members, and then 11,000 rupees. 101 people have paid 5,000. 101 flats have paid 5,000 rupees, and 38 flats have paid 11,000 rupees, and 107 flats have paid 1,000 rupees. So ये data चंद्राज जी का list था, फिर त्रिलोक जी ने काफी उस पे मेहनत किया, and then we kind of verified going back 5 years of our accounts, and this is the status of our AOA account right now. तो उस पे बात करनी है कि जो बाकी जो 16,000 है, what is the balance in AOA account? तो अभी 31st July 2019 को जब the new AOA took over, it was 9,78,412. Right now it is 8,73,843. 1,13,000 is receivable from Unitech. So in a sense we are at 978. So the same, almost same, right? 3 big expenses this year was the farmer compensation lawyer expense, 82,500, जो कि AOA account से गया है, वो CAM को सपोर्ट नहीं करता है। And then AOA renewal में हमारे 26,000 के आसपास खर्च हुए, because people had to travel, मनीष 3 बार गया था, and then we had someone there helping us. उसमें 25,000-26,000 हेल्प हुए, और the events that we do, so we usually take contribution from flats, but कभी कुछ कम पड़ जाता है, then we fill in. So उसमें we had 4 events this year, सब मिला के 25-26,000 के आसपास खर्च हुए हैं उसमें.
So again, we'll have the audit and then और इस पे भी एक discussion करना है because इसका एक point आया था कि how do we want to spend for the events. AOA account में we have revenue sources as well. आप जो screens देखते हैं वो external vendor के हैं. उससे हमें rent आता है around 55,000 per year के आसपास. और फिर MyGate कुछ commercials डालता है. तो जब भी MyGate कुछ एक campaign चलाता है उसके कुछ पैसे हमारे पास आते हैं and then the interest. तो साल के अराउंड 70-80,000 हमें आ जाते हैं AOA अकाउंट में एज अ रेवेन्यू एंड वी ट्राई टू स्पेंड दिस मनी इन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी बट कैसे खर्च करना है अगर इवेंट्स पे करना है ये एजीएम का पॉइंट है आई थिंक वी शुड कवर Thank you. So that's pretty much. Thank you, ma'am. Thank you very much for your contribution. Ma'am, I suppose 124 people contributed 5,000. 5,000. 124 people. I suppose क्योंकि जितनों ने कंट्रीब्यूशन किया था उन्हीं के सब नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। But most of they did pay by account payment or they paid cash also? नहीं सारा अकाउंट में। सारे account तो account हो गए। मैं इसके अलावा टावर 2 टावर 3 से भी टावर 2 टावर 3 से भी है। उसका नहीं है जो उसी में अकाउंट में है सब कुछ। उसमें मैं देखता चेक हूँ करना पर 101 का मेरे पास वैलिड आ गया 23 आप बोल में शॉर्टफॉल है 2-3 आई सपोज आई रिमेम्बर अब तो पुरानी बात हो गई कि हाई कोर्ट में केस हुआ भी 2018 का। उस समय 124 people have given their consent by the way of money. उसका अगर लिस्ट है तो we can update. नहीं वीडियो कितना है मेरे पास है? वीडियो कितना है नहीं जो कह रहे हैं हाई कोर्ट में जो नाम गया है। एक हिसाब का कुछ था तो वो लिस्ट हमारे पास है आपका लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। चलिए उस पर कर लेंगे काम। थैंक यू। अब हमारा जो नेक्स्ट आइटम ऑफ एजेंडा है वो है जोशी जी हमने रिक्वेस्ट किया था सर वी आर ग्रेटफुल टू यू कि आप लास्ट मंथ पे आप एग्री करें प्लीज़ आइए और बताइए कि आपने क्या कैसे किया और क्या रिजल्ट है। इधर आइए। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग का एक थॉट प्रोसेस था कि दिस टाइम वी विल प्रेफर मोस्ट ऑफ द women एज द मेंबर ऑफ AOA बोर्ड। और हमने मीटिंग में कई बार बोला रिक्वेस्ट किया कि आप सब लोग आइए मेजॉरिटी में आइए 8-9 वीमेन रहिए 2-3 मेल होंगे कि पहला बार एक्सपेरिमेंट करते हैं somehow because of family problems other issues we got few women now but hopefully next year we'll go for as many women as possible in AOA board to make it more better and more smooth. I was appointed election officer on 9th March and then I circulated on same day circular number 1 for the election of process. As per registered bylaw clause 18, there is a provision for constitution of board of management for election of 10 members. So I got the nomination up to the day time from the 10 people and after the due verification from the UNITAC for their outstanding dues from the people who are nominated, people who are proposed and people who are seconded. Once all the data I got it cleared by them, I have found out the following 10 people who are cleared and found their nomination valid. Mr. Mayank Rasu, Mr. Siddharth Pandey, Mrs. Roji Nazim, Mr. Vivek Roda, Mrs. Ruhi Pundur, Mrs. Leenu Singh, Mrs. Indrajit Kaur, Mrs. Sharmishta Joshi, Dr. Dayanand Pandey, Mr. Rajesh Kavla. Big round of applause for the All new the members. people were found okay, so they have been declared elected. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, one question. Please, sir. So actually मैं election process as per bylaws में लिखा हुआ है। It should be initiated in first मतलब financial year के first quarter. If at all you are going so strict about the bylaws, and there are few things, section 4 applicant is not eligible. Only the main 4 applicant is not eligible. In many cases you have appointed them. What all? I think I have found out the law co-owner is also eligible and I have put it in the circular. Nobody objected to that, otherwise you should have objected to that. Sir, prior to that, I have objected to Mr. Tilokji. Sir, if at all you got changed, I don't know. No, this circular, Tilakshi for last 3 years continued.
Sir, circular last 3 years का था. Co-owner का Co-owner is not allowed. According, let me chip in this. It is Sir, my not- question. नहीं Please, सर, sir, इनका don't- दोष नहीं है। Agreed. इनका दोष नहीं है। इलेक्शन कराने का जिम्मा सेक्रेटरी का है। The fault lies on me, not on Vinod Joshi. नहीं, एक सर एक मिनट. बोलिए सर। Don't- दो चीजें don't होती make it हैं, personal. उनकी दो चीजें हैं. हाँ। फर्स्ट नहीं, इज द फर्स्ट पहले सवाल, हाँ। क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर में आपने आंसर दे दिया. मैंने दे दिया। सेकंड क्वार्टर ही से को स्पॉन्सर इज नॉट देयर. वो आपका आंसर। वो मेरे हिसाब से है. तो मैं क्वार्टर में क्या है? मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट क्वार्टर हमने जितने भी इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं, हमारा आइडिया ये था कि जब हमारा टर्म कंप्लीट होगा, और मैंने आपको दूसरा जस्टिफिकेशन दिया कि 6 मेंबर में से 3 मेंबर डिड नॉट वांट टू, so we got in minority, so we had no option left and we had to go for elections. सर वो कहीं डिक्लेरेशन तो आया नहीं कि देयर आर. सर इंटरनल बोर्ड मीटिंग्स में उसके रिकॉर्ड है। नहीं सर, इस इंटरनल बोर्ड मीटिंग्स अगर कभी बोर्ड मेंबर कम होते हैं तो यू हैव टू इंटीमेट. अनुराग जी 2019 में भी इलेक्शंस दिसंबर में हुए थे। डेटा है, आपको दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं किया था तो दैट इज फर्स्ट वाला या सेकंड? सेकंड वाला आप माइगेट पे जाके देखिए, हमारे पहले भी मार्च में हुए, उसके पहले भी दिसंबर में हुए, और पिछले साल और उसके पिछले साल आप डिप्टी रजिस्ट्रार को अपने फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च किया था। किया था. व्हेन यू पीपल आर नॉट लिसनिंग. मेरा और कोई पॉइंट नहीं है. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एओए. मेरा कुछ नहीं है. इफ इट ऑल यू आर राइटिंग अ क्लॉज कि सर आपसे एक बार अनुराग जी पूछना चाहता हूँ, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता सर, तो आपके फॉर्मल कंप्लेन पे उस वक्त की एओए निरस्त हो जाती है सर, जैसे हॉराइजन में हो। और सर उन्होंने हमें अप्रूवल भी दिया सर उस टाइम को, और दूसरा चंद्राग जी हमें 5 साल का रिन्यूअल भी दिया। मतलब उन्होंने उस पॉइंट को वैलिड नहीं माना। आपके फॉर्मल कंप्लेन थे। नहीं आप डिबेट मत करिए ना. आप बाय लॉज ऑफ यूनाइटेड कैस्टेड अपार्टमेंट ये आप रेफरेंसेस डाल रहे हो, और यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से चल रहे हैं. व्हेन दिस इज अ बाइबल फॉर अस, वी शुड फॉलो दिस बाय लॉ. सर वी हैव फॉलोड द बायलॉज। तो कहाँ है बायलॉज में सबसे इवन लिखा हुआ है। ओनर इज नॉट अलाउड. डिप्टी रजिस्टर का तो दिया हुआ उनको, डिसीजन जो है डिप्टी रजिस्टर का डिसीजन ये तो रखा है. दिया हुआ है. दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि हमारा जब माइनॉरिटी में आ गया, नहीं, जब हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया, आप किसी को भी ले सकते हो, अगर माइनॉरिटी में आ गया कभी भी किसी को ले सकते हो, लिखा हुआ है. इसको ले सकते हैं। जो भी प्रोसेस में आप वॉलंटरी पे तो कोई आना नहीं चाहता है, आप कैसे हम ले सकते सर, हैं? वॉलंटरी आपने लिए थे ना 4-4 देखिए, 5-5 इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शंस मैंने कराए एज सेक्रेटरी। अगर आप में से किसी मेंबर को उस पर शिकायत हो तो कृपया डिप्टी स्टाफ को फॉरवर्ड कर दें। आई एम रेडी टू एनल दिस इलेक्शन। कितने लोग असहमत हैं? 1-2 में समझ गए, और कोई असहमत है? तो आप नहीं, बोले सर नॉट अबाउट सहमति और असहमति. बायलॉज genuine है, लॉ. सर. एक मिनट सिद्धार्थ जी, बेकार की बात हो, ये बायलॉज है. ठीक है, पता है मुझे. ठीक है. तो इससे जो लिखा है वी शुड ओबे दिस. फाइन. ठीक है. आज के दिन में तो ओबे क्या है, तो हम बिल्कुल डिबेट हो गए. देखिए मुझे लगता है जो हमारी सोसाइटी की हालत है, इतने कम लोग हैं. पहली चीज आज भी मैं अभी चेक कर रहा था, अगर 104 या 114 लोग मेंबर हैं जिनको वोटिंग राइट है, अभी भी 30% नहीं है जो वोट आप कर सकते हैं. यस सुनो, आप लोग पहले सबसे पहले ये समझिए, जो आपके पास में कोई असहमति मेरी नहीं है, रूल हमें ही पता है, बट चलिए एक मिनट, आई वुड लाइक टू बोलिए सर. आप प्लीज बताइए कि देखिए कौन है. चलिए एक आपने बोला, चलिए मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जो भी है आपके खिलाफ करना है जो आप बोल रहे हो, वो तो सेकेंडरी इशू है. आप ये बताइए को ओनर का आप क्या बोलते हो जब आप नॉन मेरे खिलाफ कुछ नहीं करना। नहीं नहीं आप बोल रहे हो, मैं मैंने कुछ कह नहीं रहा हूँ कि बोला. अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर चुनाव गलत हुए हैं, तो सर आपको पिछले साल भी लगा था, उसके पिछले साल भी लगा था, और आपने फॉर्मल कंप्लेंट फाइल किया है सर. सर देखिए सर, आप बता दीजिए किया कि नहीं किया आपने. मैंने लास्ट ईयर किया है, उसके पहले भी फॉर्मल कंप्लेंट फाइल है सर, उससे पहले नहीं. और हमने त्रिलोक जी के टाइम पे भी सर और विनोद जोशी जी के भी टाइम पे उनको रिप्लाई दिया. अगर सर वो निरस्त कर देते तो इसको हम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं. सर देखिए निरस्त करवाना है कल हो सकता है. देखिए सर इट्स पॉइंट जो आप बार बार उसको वो कर रहे हैं सर, निरस्त कल हो जाएगा. इट्स नॉट अ पॉइंट कि निरस्त करवाना है. मैं निरस्त नहीं करवाना चाहता, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि ये बायलॉज है, हमें उसे बस खाली फॉलो करना है. हमने सर चंद्र, कन्वीनियंस को I ध्यान read दिया, the Allahabad सोसाइटी High के Court इंटरेस्ट को judgment. पैरामाउंट रखा. सर इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट देखिए, I went Allahabad High Court judgment which has overruled this on based on that co-owner were permitted. सर जो Okay. डिप्टी वो मेरे पास आप- हाई कोर्ट का भी जज का उसने दिया हुआ डिक्लेरेशन, उसके बाद देखो, भी
ये वो निरस्त हो गई है। देखो ऐसा है, मैंने मेरे पास आप मेरे भेजा था, मेरे को वो दिखा नहीं है, मैंने कहा दोबारा भेज दो, आपने भेजा नहीं, दोबारा भेजा था। नहीं मिला मेरे को। चलिए विवेक जी उसमें मेरे को कोई वो नहीं, देखिए एक नहीं मैं मानता हूँ, अगर आप ये कह रहे हो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट के बेस के ऊपर आई कंसिडर्ड एंड गिवन द को-ओनर बेनिफिट, ओके। What Vivek is saying is कि he has given me the document, I have could not see the last year trace, I told him show me the one, he has not sent me, otherwise I would have not considered. I'm saying that. एग्रीड सर, वन सिंपल क्वेश्चन, दिस इज बाय लॉ, ठीक है, हमारे पास इंडियन पीनल कोड भी है, सब कुछ है, खून की सजा कई बार फांसी भी होती है, कई बार वो होती है, लेकिन हम लॉ से तो डिविएट नहीं होते ना, दिस इज आवर लॉ, व्हाई डोंट यू आर टेकिंग द रेफरेंसेस, वी आर गॉट लॉ इन आवर हैंड, व्हाई डोंट यू आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंसेस नाउ। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, इलाहाबाद हाई जजमेंट इज फॉर अ डिफरेंट थिंग, मैं कह रहा हूं जब ये लॉ है हमारे पास तो लॉ से डिविएट क्यों कर रहे हैं? नहीं, लॉ के बाद ऐसे तो रेफरेंसेस मैं 20 आपको दे दूंगा, हमें तो लॉ फॉलो करना है ना। राज जी, हमने 3 पॉइंट आपको लिखा था, अगर आप माइंड पर ध्यान देंगे, कि हमारी टर्म 26 मार्च को पूरी हो गई, नंबर 2 हम माइनॉरिटी में आ गए, नंबर 3 हमने लिखा था कि सर ये नया बोर्ड विल टेक चार्ज ऑन 2 अप्रैल, तो फॉर्मेशन सर नए फाइनेंशियल ईयर में ही हो रहा है सर, और बताइए आज और 4 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? सर ये वो क्लियर होगी ना बात, दूसरी बात होगी नहीं, दूसरी वाली हमको आई है, वो उनका अधिकार क्षेत्र, वो उसका जो है इलेक्शन जब डिक्लेयर करने के बाद इट्स मिस्टर जोशी हु विल डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट। सर देखिए, मेरे को कोई विघन नहीं डालना है, मेरे को मतलब मैं तो धीरे धीरे अपने को बिल्कुल सल्यूट कर रहा हूँ। मत कीजिए। नहीं, ओके, व्हाट यू सेइंग, अगर आप अपने को होल्ड करोगे, नहीं इसको अगर टास्क पे रख के अपने हिसाब से करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट ईयर हमने सर ऐसा है, अरे सर आई एम नॉट टॉकिंग टू यू सर, नहीं चंद्राक्ष जी, हमने कहा हमने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए व्हाई नॉट ही इज इंटरेस्टेड, नहीं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कन्वीनियंस के लिए 4 दिन पहले कराई, और हमने लिखा कि नया बोर्ड 2 अप्रैल को चार्ज लेगा। सर इट्स ऑल अबाउट व्हाट दिस से एंड व्हाट यू आर डूइंग। क्या बड़ा क्या 4 दिन का हम 4 दिन बाद करवा लेते, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, 4 दिन बाद करवा लेते ना सागर जी, क्या हो जाएगा उसमें 4 दिन? प्लीज आपसे बात नहीं कर रहा हूं, एक सर आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू यू, आप ये क्यों इंटरेस्टेड है? मैं कह रहा हूं मैंने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किया, मैंने मतलब 5 दिन के पहले करा दिया, लेकिन नए क्लियर हो गई ना, नहीं मिला, वही तो सब कह रहे हैं, मेन जो अरे वही तो चंद्राक्ष जी कह रहे हैं। और दूसरा तो ये पॉइंट कर रहे हैं कि मैं एक्सक्लूड होना चाहता हूँ, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इंक्लूड होइए अपने आप को, हम चाहते हैं कि आप बोर्ड में रहिए सर। सर आपको भी पता है सर आपको पता है, लेकिन सर काम तो करना पड़ेगा ना, काम करिए ना, आप लोग एक चीज आए तो हम स्वागत करते हैं। डोंट मोल्ड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आई एम जस्ट टेलिंग दैट, मेरा और कुछ नहीं आ रहा है, हमारे लिए समस्या हो गई सर, हम तो माइनॉरिटी में आ गए, 4 दिन पहले करेंगे, बाकी इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, और प्लीज आप एओए बोर्ड में रहिए, आप अपने को स्कूल मत कीजिए, आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है सोसाइटी के लिए, आपने एओए फॉर्म किया था, मैंने आपसे पहले कहा कि 2017 में बड़े और सर्कमस्टांसेस में आपने एओए को फॉर्म किया, वो सर्कमस्टांसेस आप नहीं हैं सर, उसका एप्रिसिएशन आप लोगों ने दे दिया है, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन, मतलब सबका सपोर्ट था, इंडिविजुअली इट वाज नॉट, बट सर आपको लीडरशिप चाहिए सर, लेकिन आज के दिन में मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग कि इसके हिसाब से प्लीज चलिए। मैं सर देखिए आज मेरे को आप कन्विंस कर लेंगे, मैं कन्विंस हो गया, लेकिन कल दिन अगर कोई और बंदा होगा विल नॉट गेट कन्विंस, सर बेकार में दिक्कत है। चंद्राक्ष जी, मैं ऑन बिहाफ ऑफ 10 मेंबर्स मैं कहता हूं कि अगले साल हम चुनाव 1 अप्रैल के बाद ही कराएंगे। व्हाट अबाउट सेकंड co-owner and all? हां, co-owner are not allowed. वो आप उसका फैसला तो ले लेंगे। नहीं हमारे लेट्स डिस्कस इन हमारे में एजीएम, नहीं पानी लेट्स डिस्कस इन एजीएम, अगर रूल है, मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट कहा था, नाउ बोथ पीपल आर सेइंग इलाहाबाद जजमेंट इज नॉट वैलिड, ओनली लॉज आर वैलिड, सो लेट्स टेक अ डिसीजन हियर, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नहीं सर, ये कौन से लोग हैं जो इस तरह कैटेगरी में आते हैं आपके लिस्ट में? नहीं, नाम से मतलब नहीं है, ये नाम से मतलब नहीं है, उनका क्वेश्चन ये है, co-owners are not permitted, even if allowed by owners, even allowed by owners, that's the question। तो वोट देने का राइट नहीं है, नहीं वो that I agree, that I agree, हमारे इसमें लिखा है। नहीं भवेक, Then if you go purely by logic and the law, so people who have got any due, they can enter this room. How can they even allow? मेंबर्स आ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। No sir, they cannot even enter. नहीं मेंबर अच्छा छोड़ दीजिए, If you purely go by जजमेंट
Now if the AGM decide, hold on, let me complete. नहीं है तो let's take a decision here. All the females are not permitted. And in future also No, they no, not all females. Unless Females they are first have, owner. huh? कोई Unless they have got a first owner. आपको ओनर की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो पावर ऑफ अटॉर्नी वाले भी लोग हैं ना। आज हम ओनर नहीं है घर के, लेकिन हमारे लड़के के नाम वो से भी जजमेंट है कि हाई कोर्ट तभी मैंने लॉ किया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, तो को ओनर्स वाली बात क्यों नहीं है एप्लीकेबल होना चाहिए? आज आप ओनर हैं, आपकी वाइफ को ओनर है मान लीजिए, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर यू गिव अ वोट और शी गिव अ वोट, लेकिन वोट उस घर से एक ही आएगा ना। ठीक है, एग्री सर। हाँ, सर लॉ ऐसा है जो बना हुआ है बहुत बेकार है। कल दिन अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे सन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इसमें। क्यों नहीं कर सकता है? अगर लिखा हुआ है, इसको इसलिए लिखा हुआ है। ऑलरेडी जजमेंट है उसका, रजिस्ट्रार का भी जजमेंट है, किसी ने उस पर यही जो इन्होंने बोला था सेम रखा हुआ है। प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट लिया, उसको अभी लिया। अरे उस पर प्रिंट आउट अरे ठीक है, आपने बता दिया उसने। आपको फैसला लेना है करना क्या है। देखिए आदमी ऐसे 10 लोग होना चाहिए, 10 तो कभी आते ही नहीं है। पिछले साल भी 6 थे, एक तो कभी आए नहीं, 5 लोग सोसाइटी चला रहे थे। अब इस बार अगर आप 4 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएंगे। और हमारी सोसाइटी में बहुत, वी आर वेरी लकी, पिछले 5 साल से चुनाव ही नहीं हुआ है। पानी की 5 जाएंगे। एवरी टाइम यूनानिमस हुआ है। इट्स ए ग्रेट न्यूज़। आप साथ में देखिए 5 जाएंगे। होराइजन में 2 वो चल रहा है बगल में, डेली वहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्या करना चाहते हो? हाँ? मैं इसीलिए मैं गुलाब जामुन लेके आया हूँ। झगड़ा बंद कीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अगले बार से आपको रिमूव कर चलिए। आदमी नहीं है सर, चंद्रा जी आप आ जाइए, हम 4 बढ़ा। अब देखिए सर पता है क्या हुआ, हम जब यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे तो हमने क्या रिक्वेस्ट किया सबके, लोग क्या कहते हैं, नहीं आई विल बी सपोर्टिंग बट मुझे बनाओ मत मेंबर। हर आदमी सर सपोर्ट करना चाहता है, मेंबर नहीं बनना चाहता है। ना स्पोर्ट में भी आते हैं कि नहीं ये पता है। अब देखिए मैं इनको ताली इसलिए बजवाया कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये हर संडे को यहाँ पे आके बैठते हैं। तो हमें सर 10 आदमी चाहिए जो यहाँ के बैठे, और सर हमने एक एजेंडा बनाया है कि भाई एक आदमी चाय लेके आएगा, एक मिठाई लेके आएगा, एक समोसा लेके आएगा, ताकि लोग आते रहे। आज भी आपके लिए बर्फी लेके आए स्पेशल। चलो भाई बर्फी डिसाइड करना है, तो चलाएंगे आप बुजुर्ग हैं, आप ये चलाएंगे। दादा जी बोल मैं कह रहा हूँ सर